Hello everyone, welcome to LRNR classes. So today we are going to discuss about a topic that is genetic code. Okay, so what is genetic? Genetic means study of genes. Okay, so ये जो genes है that are expressed in form of a codon. Okay, so that is called genetic code. So ये जो genetic information जो transfer हो रहा है from generation to generation, okay, from parents to offspring. So ये जो information are transformed in form of a codon. Okay, that is the genetic code. Okay, so ये जो codon होता है it is the coded information. It is also a coded information means ये जो information है that is the genetic information. जो informations हमारे previous generation से next generation को आएगा. Okay, that information is the coded information and that encodes for one amino acid. Okay, एक genetic code encodes for one amino acid. So ये होता है genetic code. तो ये genes क्या होता है? Genes मतलब genes carries the information. Okay, genes carries the information containing a sequence of nucleotides. Okay, so gene एक information को carry करता है. वो information can be in form of a protein and that protein can be made up of some chain of amino acids. So gene एक information carry करता है बट एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड जेनेटिक कोड. एंड जेनेटिक कोड क्या होता है? इट इज द कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर वन अमीनो एसिड. ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए ही होगा. ओके, एंड दैट कोडेड इंफॉर्मेशन और दैट कोडन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, डीएनए के स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होगा. ओके, सो ये 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर एक जेनेटिक कोड बनता है. दैट मीन्स इट इज द ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस और इट इज द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, डीएनए के स्ट्रैंड में जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मिलाकर एक जेनेटिक कोड बनता है. ओके, and there are 4 nucleotides of DNA. Okay, we have already discussed that in the DNA strand, the types of nucleotides are 4 types. What are the 4 types of nucleotides? A से adenosine, T से thymidine and आपका A से adenosine, T से thymidine, G से guanosine and C से cytidine. Okay, 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होता है. पर देखा जाए तो ये 4 तरीके जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये क्या करेंगे? 3 कॉम्बिनेशन होकर अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन कोड करेंगे. सो अगर ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स है लेकिन हमारा कोडन कैसे बनता है? 3 न्यूक्लियोटाइड को लेकर एक कोडन बनता है. ओके, सो वाई अप्लाइंग ए पॉसिबिलिटी परम्यूटेशन फार्मूला. सो देयर आर 4Q means 64 possible codons are present. Okay, there are 64 codons, possible codons are present. But how many amino acids are there? There are 20 amino acids. Okay, there are 20 amino acids in our body. So, ये 64 codons are sufficient to encode for 20 amino acid information. Okay, so thus the genetic code refers to the relationship between the 4-letter language of nucleotides and 20-letter language of amino acid. So genetic code refers the relationship between 4-letter language of nucleotides and 20 letters language of amino acids. Okay, so there are 64 possible types of genetic code. So here is the table for genetic code. So ये table से 4 होकर 64 codons दिखाए गए हैं. So ये जो symbolic representation है ये है एक amino acids का नाम. Okay, these are the phenylalanine, leucine, okay, isoleucine, valine, serine, proline, threonine, alanine. Okay, ये tyrosine, TY या tyrosine, histidine, glutamine, okay, aspargine, aspartic acid, lysine, arginine, ये सब है अमीनो एसिड का नाम. So इस तरीके से आपका 20 अमीनो एसिड से एंड 20 अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन कोड करने के लिए हमारे पास 64 पॉसिबल कोडन्स है. और 64 कहाँ से आया? जो 4Q मीन्स 4 न्यूक्लियोटाइड से कोडन बनेगा बट 3 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर एक कोडन बनेगा. सो देयर आर 64 टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड. ओके,
सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट। ओके, 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर एक कोड बनता है। सो जेनेटिक कोड इज द ट्रिपलेट फॉर्म। ओके, 3 न्यूक्लियोटाइड्स is the one genetic code. Okay, that's why genetic code is triplet. The code is non-overlapping. Non-overlapping means suppose there is a sequence, ये एक sequence होता है. So non-overlapping means the first consecutive the 3 nucleotides, okay, that encodes for 1 amino acid. And next codon कहाँ से start होगा? Next codon आपका 4th nucleotide से start होगा, नॉट सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो ये CCU एक कोडन होगा, CAA कोडन होगा। ये CUC ये भी एक ट्रिपलेट है। ओके, UCA ये भी एक ट्रिपलेट है, बट दीज आर नॉट कैन नॉट फॉर्म ए कोडन बिकॉज दिस इज ओवरलैपिंग एंड जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। दिस इज ए लीनियर सीक्वेंस। अगर ये एक सीक्वेंस है तो फर्स्ट जो कंसेक्यूटिव जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होगा that encodes for 1 amino acid and जो next code start होगा वो 4th nucleotide से start होगा। So that's why genetic code is non-overlapping. Okay, the code is comma-less. There is no comma, no punctuation mark in between 3 letters of nucleotides. Okay, 3 nucleotides के बीच में comma नहीं है कि punctuation भी नहीं है। Okay, the code is unambiguous. Unambiguous means one codon, okay, takes the information for 1 amino acid. एक कोडन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए ही इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, ना कि 2 अमीनो एसिड के लिए। सो दैट्स व्हाई द कोड इज अनएम्बिगुअस। ओके, द कोड इज यूनिवर्सल मीन्स कोडन के लिए जो भी अमीनो एसिड्स होगा, सपोज CAU के लिए आपका अमीनो एसिड है हिस्टिडीन। सो ये वाला जो कोडन इंफॉर्मेशन है ये लागू होता है हर काइंड्स ऑफ एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। सो दैट्स व्हाई द कोड इज यूनिवर्सल। ओके, द कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट मीन्स तो सपोज ये टेबल देखो तो क्या देखते हो, सिर्फ एक अमीनो एसिड, ये थ्रियोनिन 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 थ्रियोनिन, ये एक अमीनो एसिड के लिए 4 कोडन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ भी अलानाइन है, अलानाइन एक अमीनो एसिड के लिए 4 कोडन प्रेजेंट है। सो ये जो रिपीटेशन होता है, ओके, रिपीटेशन ऑफ कोडन्स फॉर 1 अमीनो एसिड, दैट इज द डीजेनरेसी। ओके, if there are 3 or 4 codons for 1 amino acid, then this is called repetition in genetic code and that is called degeneracy. So suppose we have 64 types of 64 possibility codons. We have 64 genetic codons. Okay, but among the 64 codons there are stop codons are there. Okay, we have already discussed about the stop codon. There are 3 stop codons or 3 nonsense codons. What are the nonsense codons? UAA, UGA and UAG. Okay, ये है एक UAA, ये एक stop codon है। Okay, UAG एक stop codon है and UGA ये एक stop codon है। So ये तीनों codon non functional हो गया। But then we have 64 minus 3, that is we have 61 functional codons. हमारे पास अभी 61 functional codons present है। Okay, and 61 functional codons से fixed amino acid किस लिए है? AUG. AUG is the initiation codon. Okay, AUG is the initiation codon and GUG also the initiation codon. AUG and GUG, they have fixed amino acid, that is the AUG codes for methionine in eukaryotes and AUG codes for N-formal methionine in prokaryotes. Okay, and GUG codes for valine. ये हो गया। So ये fixed amino acid हो गया initiation codon के लिए। We have then 61 minus 2 equal to 59. ओके, 59 कोडन्स एंड अमीनो एसिड 2 चला गया तो कितने अमीनो एसिड रहा हमारे पास? 18 अमीनो एसिड। 18 अमीनो एसिड इज आर कोडेड बाय 59 कोडन्स। सो रिपीटेशन तो होगा ही। सो दिस प्रॉपर्टीज बाय द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेसी। Okay, that property is called degeneracy property.
सो कोलिनियरिटी मीन्स डीएनए स्ट्रैंड में जिस तरह से सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उस सीक्वेंस के हिसाब से आपका प्रोटीन भी फॉर्मेशन होगा। सपोज डीएनए के स्ट्रैंड में आपका सीक्वेंस है ATGC CAG, ये एक सीक्वेंस है। सो ये ATG के लिए जो प्रोटीन होगा CCA के प्रोटीन होगा सपोज GAC, ये एक कोडोन है। सो ATG मतलब AUG, ओके, RNA में AUG होगा। सो AUG के लिए हमारा मिथ्योनिन सॉरी अमीनो एसिड क्या है, मिथ्योनिन। CCA लेके अमीनो एसिड क्या है, प्रोलिन। ओके, GAC के लिए अमीनो एसिड क्या है, एस्पर्टिक एसिड। ओके, सो हमारा प्रोटीन भी ऐसे ही बना होगा, जिस तरह से डीएनए में सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसी हिसाब से प्रोटीन का सीक्वेंस भी होगा। ओके, दैट इज ऑल्सो, सो दिस इज कॉल्ड कोलिनियरिटी। द कोलिनियरिटी बिटवीन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हुआ उस तरह से प्रोटीन में भी कुछ चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड में कुछ चेंज में भी सीक्वेंस में कुछ चेंज हो जाएगा, प्रोटीन भी अलग हो जाएगा। So that is called collinearity property of genetic code. Okay, then gene polypeptide parity. Okay, then come to gene polypeptide parity, which is the last one. Okay, so it means a specific gene. Okay. It means a specific gene transcribes a specific mRNA. Okay, mRNA में जिस तरह से जीन होगा उस हिसाब से आपका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन ही फॉर्मेशन होगा। ओके, सो आपका इसलिए बोलते हैं जीन पॉलीपेप्टाइड पैरिटी। जिस हिसाब से आपका जेनेटिक सीक्वेंस होगा उस हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन भी फॉर्मेशन होगा। सो देयर आर ए रिलेशनशिप बिटवीन जेनेटिक सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड योर पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, दैट इज कॉल्ड जीन पॉलीपेप्टाइड पैरिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक कोड। सो अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख देना। थैंक यू।